الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کی تلاوت کی، اس کے اندر اللہ عز و جل ہم ایمان والوں سے مطالبہ فرما رہے ہیں۔ آیت کے مخاطب، آیت کا حکم، اللہ رب العزت کا حکم ایمان والوں کو ہے کہ اے ایمان والوں، تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمے کا اقرار کر لیا اور ہم اب ماشاءاللہ نماز روزہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم نے اس ایمان کے مفہوم کو یہ سمجھا کہ کرتا پائجامہ ٹوپی پہن لینا اور اوپر کے جیب میں ایک سائیڈ کے اندر مسواک کا ایک جیب الگ سے لگا کر یہ سمجھنا کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم نے ہم تمام کو مخاطب اسی لیے کیا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا کان، تمہاری ناک، تمہارا آنکھ، تمہارے جو ہے ہر عضو، سر، پیر، دل، دماغ، سارا کے سارا ایمان والا ہو جائے۔ یہ مفہوم ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے اندر آدھے باہر نہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، بلکہ پورے پورے۔ آج اس وقت اس آیت کی تلاوت فرمانے کے بعد اور اس مفہوم کی وضاحت کے بعد ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم کتنے جو ہے پائے کے ایمان والے ہیں، اور قرآن کریم ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہم سے مطالبہ فرمایا کہ تم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں۔ اب پورا ایمان، پورا اسلام، پورا دین ہم کو کہاں سے ملے گا جس میں ہم داخل ہوں گے؟ تو بنیاد ہے ایمان کی، اسلام کی، کہ ہم جب داخل ہو جاوے، یا ہم جس کے آئیڈیل، جس کے نقش قدم پر چلے، جس کے راستے پر چلے، جبھی تو جو ہے ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں آئیڈیل اور نمونہ اور ہمیں طریقہ اور راستہ جو بتایا گیا ہے وہ سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارو، یعنی کہ جو احکامات آپ نے بتائے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اسی لیے قرآن کریم کی دوسری آیت ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جتنا تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنا لے لو، اور جس کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دو۔ یہ مفہوم ہے قرآن پاک کی آیت کا، جتنا کہاں گیا اتنا لے لو۔ اسی لیے اللہ کے رسول سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں صحابہ کو جمع کیا، اور جمع فرمانے کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تم پر پورا کا پورا دین اسلام مکمل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس دین میں نہ کسی معاملے کی زیادتی کی گنجائش ہے، نہ کسی کی کمی کرنے کی۔ ایک سانچہ، ایک ڈھانچہ اور ایک آئیڈیل ہم کو دے دیا کہ دیکھو اسی کے مطابق اب تم کو زندگی گزارنا ہے۔ باہر کیف وقت بہت کم ہے، اور یہ جو ہے پیشگی بات جو میں نے کی وہ سمجھانے کے لیے کی کہ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب کا چل رہا ہے، اور آج رجب المرجب کی جو ہے 19 تاریخ ہے، 19 تاریخ ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ 19 تاریخ کے بعد
करीब के अंदर अब 22 तारीख आने वाली है। हाँ, इस 22 तारीख के अंदर हमारा ईमान वाला, हमारा मुसलमान, हमारा वो भाई जो दीन को समझता है, लेकिन दीन की असलियत क्या है, दीन का तकादा क्या है, दीन हमें क्या दिया गया, शरीयत के अंदर क्या हुक्म है, उसको समझने को तैयार है। ये हकीकत है हमारी। कुरान ने हमें क्या दिया, हम उसको समझने को, उसको खोल कर पढ़ने को तैयार नहीं, उसको तैयार ही नहीं है कि भाई कुरान क्या कह रहा है हमसे। तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ो तो फिर समझ में आएगा कि कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, कुरान ने किस जगह किस बात का हुक्म किया, कुरान ने किस जगह किस बात को करने का हुक्म किया, और कुरान ने किस जगह किस बात को मुझे और आपको और उम्मत मुस्लिमा को रोका, उसको मुझे और आपको पढ़ने की जरूरत है। बाहर कैफ रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख को जो है हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर और खास तौर से हिंद के अंदर और पड़ोस मुल्क के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम कोंडे का त्यौहार कहते हैं, बड़े धूम से चलता है। लेकिन हम इसकी हकीकत को समझे कि क्या है। बाद लोग इसको इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो है इसकी निस्बत करते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश रमजान मुबारक के अंदर हुई और आपकी वफात शव्वाल के अंदर हुई। तो जाहिर सी बात है, एक बात क्लियर हो गई कि इमाम जाफर सादिक की न इस दिन वफात हुई न इस दिन पैदाइश हुई, जो लोग इस तरफ जो है उसको मंसूब करते। दूसरी चीज क्या है इसकी हकीकत, इसकी हकीकत यह बुजुर्गों कि 1906 के अंदर मुंशी जमील अहमद साहब करके रामपुर के एक शख्स रहने वाला था, जिसने किताब लिखी दास्तान अजीब। किताब का नाम भी माशाल्लाह अच्छा रखा, दास्तान अजीब। उसने उस किताब के अंदर एक मनगढ़ंत वाकया लिखा और उसने उसमें लिखा कि एक लखड़हारा था जो है वो एक मर्तबा जो है परेशान हाल था, और परेशानी के आलम के अंदर वो जो है अपने घर से निकला और निकलने के बाद अपने गांव से दूसरे गांव के अंदर जो है मेहनत मजदूरी करने के लिए चला गया। फिर देखता क्या है, देखता ये है कि जो है कुछ दिनों के बाद वो जा रहा था रास्ते में सुबह सवेरे के अंदर अपने काम की तलाश के अंदर, तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह जो है वो जो है रास्ते में जा रहे अपने पीर और मुरीदीन के साथ। हाँ, पीर मुरीदीन के साथ वो जा रहे तो देखा कि रास्ते में जो है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई आप जो है आज क्या तारीख है, तो क्योंकि 22 तारीख है, तो वे क्या करे, तो कि आज जो कोंडे करेगा उसकी हर मुराद पूरी होंगी, और मामला है कि अगर नहीं होगी तो कल कयामत में मेरा दामन पकड़ ले। ये लिखा है उस किताब में, लिखा है। और लिखने के बाद फिर ये जो है लखड़हारा गया, और जाने के बाद फिर मामला ये हुआ कि जो है अब ये जो है दरख्त पर चढ़ा, और चढ़ने के बाद जब ये कुल्हाड़ी मार रहा था तो इसकी कुल्हाड़ी नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद अब इसको एक आवाज आई। अब ये आवाज पर इसने देखा तो देखा कि उसको खोदा तो इसमें खजाना निकला। क्या निकला? खजाना। वो जाग के सुन रहे हो ना, जाग के सुन रहे कि नहीं? हाँ, वरना ये है कि फिर वही होगा माशाल्लाह के इमाम साहब ने बोले थे कि प्याज खाना हराम है, तो घर पे जाके कहीं तो प्याज खाना हराम। माशाल्लाह हमारी कौम का यह हाल है कि आखिर में आती है, हाँ, फिर ये फतवे लगते हैं। बाहर गए जब उसने जो है कि वो खजाना खोदा, खोदने के बाद अब वो वापस अपने गांव गया, और जाने के बाद अब उसने एक महल बनाया इतनी रकम से। अब महल बनाने के बाद मामला ये हुआ कि वो जिस जगह महल बनाया उसके सामने एक वजीर का महल भी था, वजीर का महल भी था। अब मामला ये हुआ कि सुबह हुई, तो सुबह होने के बाद जो है कि वजीर की जब अहलिया बेदार हुई तो उसने देखा कि अचानक इतना बड़ा महल कैसे बन गया। अब वो बादशाह के पास गई। अब वो जो है ये वजीर की और वो वजीर की जमती नहीं थी, ये लखड़हारे की और उसकी जमती नहीं थी। तो अब उसने इस तरह से मामला पेश किया। अब मामला ये हुआ कि मामले के अंदर उन्हें ये कहा कि भाई देखो, मैं तो जा रहा था रास्ते से इमाम जाफर सादिक मिले और उन्होंने कहा कि कोंडे के त्यौहार करो, मैंने त्यौहार किया और उसके बाद मुझे वो सब ये सब मिला खजाना और मेरा मकान बन गया। अब वो वजीर जो था जिसकी बीवी ने देखा था कि रातों रात महल बन गया, वो वजीर ने उसका इनकार किया, वो वजीर ने उसका इनकार किया। और मामला ये हुआ कि मामला अब बादशाह के पास पहुंचा। अब बादशाह के पास मामला पहुंचने के बाद बादशाह ने सारा सुना, और सुनने के बाद फिर ये वजीर
जिसकी बीवी ने जो है देखा था सुबह में कि महल तैयार हो गया, वो उसने मामला ये किया कि उसने इसके मामले के अंदर बादशाह को कहा कि देखो ये लखा डारा है और तुम्हारे जो बेटे का इंतकाल हुआ तो जो है ये तुम्हारे बेटे को मारने वाला यही वजीर है। तो सबूत क्या है? तो इसमें जो है वो एक कपड़े के अंदर लपेट कर तरबूज लेकर गया था और तरबूज जो है अचानक वो सर हो गया बादशाह के बेटे का। तरबूज क्या हुआ? तो बादशाह के बेटे का अचानक सर हो गया मामला। अब बादशाह ने उसको उठाकर जो है जेल में डाल दिया, दोनों मियाँ बीवी को। तो वाकईतन इसने जो है मेरे बेटे को जो है कत्ल कर दिया। अब मामला यह है कि दोनों के दोनों जेल के अंदर, और अपनी क्या सजा है तो सजा की बुनियाद के ऊपर जो है अब परेशान है कि हमारी सजा क्या हुई। ये मामला हुआ। अब सजा को जो है बादशाह ने दे दी, जेल के अंदर ये कैद हो गए। अब ये अपनी सजा के ऊपर कि हमारे को क्या सजा के ऊपर बात है, हमसे क्या गुनाह हुआ, सब ये सोच रहे हैं माशाल्लाह। तो जो है शोहर कहता कि जो बीवी कहती कि जो हो सकता है हमने नमाज छोड़ दी इसकी वजह से, नमाज छोड़ दी इसकी वजह से। शोहर कहते कि नहीं, नमाज को छोड़ने पर इतना बड़ा गुनाह थोड़ी है, हम सब भी जानते कि नमाज को छोड़ने पर इतना गुनाह नहीं है जितना हम समझते। अगर हम समझते थे कि नमाज को छोड़ने पर गुनाह है तो माशाल्लाह जुमा के अंदर मस्जिद आले इमरान जैसे फुल हो जाती है, रोड पर माशाल्लाह लोग होते हैं, ऐसे हर मस्जिद के अंदर फजर की नमाज में भी लोग होते हैं। लेकिन हम समझते नहीं कि नमाज को छोड़ना गुनाह क्या है। देखो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल अमाल के अंदर लिखा नमाज छोड़ने का किताब, तफसील से पढ़े हम उसको। अब इसकी बीवी ने कहा, इसने कहा कि नहीं नमाज को छोड़ना कोई गुनाह नहीं है। तब कोई ज़कात के ऊपर बारे, ये ज़कात का भी कोई मसला नहीं। अब ये बहुत सारी चीजें बताती गई। आखिर तो इसकी बीवी ने कहा तो एक मरतबा ये हुआ था कि वो लक्का डारा जो आया था और बादशाह के मामले के अंदर जो तय किया था, तो उस वक्त मामला ये हुआ था कि हमने दोनों का इनकार कर दिया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर बादशाह ने हमको कहा कि हाँ बात यही है, ऐसा ही हुआ था। तो इस बुनियाद के ऊपर हमें जेल में डाल दिया गया। अब मामला ये हुआ कि अब जो है रिहाई हुई, उसके बाद इन्होंने जो है ये सारा मामला किया। लेकिन बुजुर्गों ये सारी के सारी पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको सुनाई ये मनगढ़ंत है। ये लिखी भी है, मुंशी जमील अहमद जो रामपुर के रहने वाला था उसने ये लिखा पूरी कहानी, पूरी की पूरी लिखी हुई है। अब इसको समझने की जरूरत है, हम समझे कैसे। पहली चीज जो मैंने बताया कि इमाम जाफर सादिक की तरफ इसको मंसूब करते। तो इमाम जाफर सादिक की पैदाइश रमजान में, आपकी वफात शव्वाल में, पहली चीज। दूसरी चीज जो लिखने वाले ने लिखा कि बादशाह था, उसका वजीर था। अकल के पैदल पैदल ही होते हैं, और उसको मालूम था कि आने वाली जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन वो तो कुरान और हदीस और सुन्नत की बातें तो मुमकिन होंगी। तो ये मेरी बात कहां लगी। आज देखो हम किस दर्जे पर पहुंच गए कि कुरान और हदीस और सुन्नत के अंदर जो वजाहत के साथ लिखी हुई चीजें हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, हम उसको तैयार हैं, हम उसका मुनकिर हो रहे। याद रखो कुरान और हदीस का मुनकिर जो भी होगा वो याद रखो वो काफिर होगा, उसको बराबर मरेगा। जाहिर के एतबार से चाहे कितनी नमाज रोजे सज्जा कर ले, चाहे वो कोई भी जो है दीन का काम कर ले, लेकिन याद रखो कुरान और हदीस का मुनकिर वो मुनकिर होगा, वो काफिर होगा। हमें तो हर पहलू के अंदर कुरान और हदीस और जो है सुन्नत को इकरार करना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को डालने की कोशिश करना, हर पहलू। और हमें वो जमात, वो तंजीम और वो लोग जो इस काम में लगे कुरान और हदीस सुन्नत की इसमें उसकी इशाअत में लगे, तो हमें उनका ताउन करने की जरूरत, हम उनके मददगार बने, न कि उनके मुखालिफ बने। और उसको मालूम था कि आने वाली जनरेशन कुरान और हदीस और सुन्नत की बातों की मुनकिर होगी, वो तो खुली हुई चीजें जो लिखी है उसको नहीं मानेगी। तो मेरी बात तो मुश्किल है कि जो है टाले। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने जो है मुंशी जमील अहमद की बातों को लोगों ने माना, और मामला ये हुआ, पते की बात जो बतानी है इस मामले के अंदर, तो अगर हम देखें तो उस वक्त के अंदर 1906 के अंदर न बादशाह था न वजीर था। अरे उस वक्त तो खिलाफत का जमाना था, खिलाफत चलती थी, खिलाफत का दौरा था उस वक्त। लेकिन ये सारी चीज बुजुर्गों ये मनगढ़ंत है और ये दास्तान है। अब इसकी हकीकत क्या है कि इसके पीछे क्या हुआ? इसके पीछे ये हुआ कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उस दिन जो है वफात पाए, आपको जो है शहीद किया गया। शिया हज़रात जो है उस दिन जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की वफात के ऊपर
चुपके से रातों को उन्होंने खुशियां मनाई, मिठाई बांटी और उन्होंने जैसे जुलूस किए खामोशी के अंदर और जो है मातम किए खुशी के अंदर कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया, हमें इस पर खुशी है। अब ये कौम बुजुर्गों जो सोई हुई कौम है, याद रखो बुजुर्गों, अब इसको क्या समझाएंगे कि कोंडो की हकीकत क्या है कि क्या? अरे हम तो जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के गुस्ताख शुमार हो रहे, जो लोग ये कर रहे हैं। आप अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बागी है, तो ये तो शिया ने शुरू की रस्म, तो उनके नक्शे कदम पर उन्होंने एक वक्त था तो रातों के अंदर ये चीज होती थी। अभी करीब से जो है दिन के अंदर जो कोंडो का त्यौहार मनाया जा रहा है, असल तो ये रात को चलती थी ये रस्म, लेकिन अब शुरू हो गई। इसके लिए अब ये चल पड़ी तो लोग जो है हमारे माशाअल्लाह इनको भोले भाले मुसलमान नहीं कहेंगे, ये सोचे समझे और समझदार मुसलमान है जो इन रस्मों के अंदर जो है मुब्तला होकर बुजुर्गों अपनी आखिरत को खराब कर रहे, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे। इसलिए खुदारा ऐसी रस्मों से हम इज्तनाब करें, ऐसी रस्मों से बचें कि जो लोग मुलव्विस इसके अंदर उनको समझाए जाते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, इसका क्या ताल्लुक है इमाम जाफर सादिक से, ये क्या मामला है, उनको जाकर समझा है, उनको बताएं कि दीन क्या है, हकीकत क्या है। इसलिए मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी आपका कान, नाक, आंख, पैर, सारी की सारी चीजें ईमान में तब दाखिल हो जाएगी तब हम जो है, जब हम पूरे जो है इस्लाम के पैरोकार हो जाएंगे कि हम सारी चीजों को अपनाएंगे जिसको कुरान हदीस में अपनाने का और अमल पैरा होने का हुक्म दिया गया और जिससे कुरान करीम ने रोका, अल्लाह के रसूल सरकार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे रोका, जब हम उससे रुकेंगे तब हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने वाले और पूरे पूरे इस्लाम के मानने वाले माने जाएंगे। आखिर में जो है कुरान पाक की जो है आखिर की आयत जो है वो बाकी रहेगी, इंशाल्लाह किसी वक्त के अंदर उसका जिक्र किया जाएगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि तुम जो है शैतान का इत्तिबा मत करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला जो बातें कही है मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।